all of you. Hope you all are fine, beta. Let's do the remaining reading of chapter number 4. Beta, before this, we came to know that Swami had given a wrong description of his teacher, Samuel, to his father, that he was a very violent teacher and he used to beat the boys with cane and he would not stop till he saw the blood on the boy's hand, and which he made the boy press to his forehead like a vermilion marking. And Swami hoped that his father would be convinced that he would not send him school. Okay, so you can say that now the father had ordered his son to get ready to the school, and he took it as a challenge and wanted to see what the teacher will do to Swami when he is going late to the school. Now he ordered Swami to dress up, and meanwhile he composed a letter to the headmaster. The result was he proposed to send Swami late to his class as a kind of challenge. He was also going to send a letter with Swami to the headmaster. Now he wanted to give a letter to the headmaster against Samuel. No amount of protest from Swami was of any avail. Avail का बेटा बोलता है कि of no result. कहते प्रोटेस्ट होता है, स्वामी ने कितना भी मना क्यों ना किया कि पापा प्लीज़ लेटर मत भेजो, लेकिन फिर भी फादर क्या थे, कनिंग फादर थे, ही वॉज ऑब्स्टिनेट स्टबन, यानी कि वो ज़िद्दी फादर थे. उन्होंने स्वामी की बात नहीं मानी एंड स्वामी हैड टू गो टू स्कूल. बाय द टाइम ही वॉज रेडी, जैसे जब स्वामी रेडी हो रहा था, फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर. कंपोज होता रिटर्न, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा लेटर लिखा हेडमास्टर के लिए. पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट. उन्होंने एक एनवेलप में उसको डाल के उसको सील कर दिया, सो दैट स्वामी कुड नॉट ओपन इट एंड सी द कंटेंट, और ताकि उसको पढ़ भी ना सके. What have you written, father? Swaminathan asked apprehensively. Apprehensively तो बेटा anxiously या curiously, कि वो उत्तेजित था जानने के लिए कि आपने लेटर में लिखा क्या है. Nothing for you. Give it to your headmaster and go to your class. कहते अपने हेडमास्टर को दे दो और क्लास में चले जाना अपना. Okay. हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट टीचर सैम्यूल? क्या आपने हमारे टीचर सैम्यूल के बारे में कुछ लिखा है? प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हिम. मैंने बहुत कुछ लिखा है उसके बारे में. व्हेन योर हेडमास्टर रीड इट्स ही विल प्रोबेबली डिसमिस सैम्यूल फ्रॉम द स्कूल एंड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस. कहते जब आपके हेडमास्टर इन लेटर को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, उसको नौकरी से डिसमिस कर देंगे, निकाल देंगे, एंड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस. बिकॉज सी बेटा, कॉर्पोरल पनिशमेंट और physical punishment is not allowed in school nowadays. That's why maybe the school will take strict action, legal action against the teacher and hand him over to the school. What has he done, father? क्या किया उन्होंने? Well, there is a full what has he done, father? Look, he has described so much about Samuel, that he beats the boys and how when he start caning he will not stop till he saw the blood. And after that also he's saying आपने उन्होंने किया ही क्या है. Well, there is a full account of everything he has done in the letter. इसमें पूरा कुछ लिखा हुआ लेटर में क्या है. Give it to your headmaster and go to your class. कहते अपने हेडमास्टर को दे दो और अपनी क्लास में चले जाना. You must bring an acknowledgement from him in the evening. बेटा, what is an acknowledgement now? See beta, I'm giving you an example over here, that when you pay the fee, okay, जब आप स्कूल की फ़ीस भी पे करते हैं सपोज, सो यू गेट अ रिसिप्ट फ्रॉम ऑफ इट, है ना. दैट एक्नॉलेजमेंट इज़ दैट ही हैज़ टेकन द लेटर and giving you a signature sheet, kind of sheet, which tells that he had received the letter. Okay, so he was asking for an acknowledgement. Now why he's asking for an acknowledgement? Because the father had a doubt that Swami would not deliver the letter to the headmaster. That's why he was asking Swami to bring an acknowledgement from the headmaster, which means he will be sure that Swami had delivered the letter. Now, Swami went to school feeling that he was the worst perjurer on earth. परजुरर का मीनिंग होता है बेटा फॉल्स विटनेस, यानी कि वो अपने आप को फॉल्स विटनेस मान रहा था कि मैं किसी के लिए बुरा कर रहा हूँ. हिज कंसाइंस बॉदर्ड हिम. कंसाइंस का मीनिंग होता है बेटा सोल. उसकी अंतर आत्मा उससे क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी. ही वॉजंट एट ऑल श्योर इफ़ ही हैड बीन एक्यूरेट इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्यूल. उसे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैंने क्या सही डिस्क्राइब किया सैम्यूल को. सैम्यूल नाउ टीचर.
answer. He could not decide how much of what he had said was imagined and how much of it was real. कहते हैं उसको उसे समझ में नहीं आता कितना उसने इमेजिन बोला और कितना सच बोला है. He stopped for a moment on the roadside to make up his mind about Samuel. उसने रोड पे किनारे खड़े होके सोचना शुरू कर दिया सैमुअल के बारे में. ही वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल. कहते कि जैसे वो सोच रहा था तो उससे एकदम से रियलाइज हो कि सैमुअल इतना भी बुरा नहीं है. पर्सनली ही वॉज मच मोर जीनियल देन द रेस्ट. जीनियल होता है बेटा फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. कहते बाकी टीचर्स के अकॉर्डिंग तो वो काफ़ी फ्रेंडली थे और खुशमिजाज थे. ऑफन ही क्रैक्ड अ जोक और टू सेंटरिंग अराउंड स्वामीज इन एक्शंस. कहते कई बार टीचर्स क्या कर देते हैं बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव बनाने के लिए क्लास में जोक कर देते हैं. और कई बार क्या करते हैं कोई बच्चा काम नहीं कर रहा तो थोड़ा सा कहते हैं बेटे तू काम कब करना शुरू करेगा, लाइक दिस, है ना. तो अब वो स्वामी सैमुअल भी क्या करते थे स्वामी के ऊपर स्वामी के इन एक्शंस पे कोई ना कोई जोक कर देते थे. एंड स्वामी टुक इट एज अ पार्ट ऑफ सैमुअल्स पर्सनल रिगार्ड फॉर हिम. और बच्चों को क्या फील होता है कि टीचर तो उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते. तो स्वामी की भी फीलिंग क्या थी कि इस टीचर का पर्सनल क्या है कॉमेंट बन गया उसके लिए. बट देयर वॉज नो डाउट दैट ही ट्रीटेड पीपल बैडली. कहते लेकिन इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो लोगों को क्या करते थे बुरी तरह ट्रीट करते थे. बट हिज केन स्किन पीपल्स हैंड. कहते कि उनके जो डंडा था उन्होंने काफ़ी हाथों की चमड़ी उधेड़ी हुई है. स्वामी कास्ट हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस ऑफ दिस. कास्ट ही थॉट इन हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. उसे याद ही नहीं आ रहा था जब वो सोच रहा था कि ऐसा कब हुआ था कि उन्होंने बहुत बुरी तरह एक बच्चे को मारा हो. तो स्वामी के माइंड में कोई भी पिक्चर आ ही नहीं रही थी ऐसे. देयर वॉज नन विद इन हिज नॉलेज. उसकी नॉलेज में ऐसी कोई बात ही नहीं थी. ईयर्स एंड ईयर्स अगो ही वॉज reputed to have skinned the knuckles of a boy in first standard and made him smear the blood on his face. कहते बहुत साल पहले क्या हुआ था सैमुअल के बारे में ये कहा गया था कि उसने बच्चे की चमड़ी उधेड़ी थी हाथों की. हैव स्किन्ड द नकल्स. नकल्स होते हैं बेटा अपनी आप फिंगर देखिए उसमें ना आपको लाइंस दिखेंगी. आपके फिंगर्स में हैंड के फिंगर्स में आपको दो लाइंस दिखेंगी. उनको नकल्स कहते हैं. कहते कि उन्होंने इतनी ज़ोर से मारा कि उस बच्चे के नकल्स ही क्या हो गए स्किन्ड हो गए पील्ड हो गए. फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को फर्स्ट क्लास के बच्चे को कोई टीचर इतनी बुरी तरह मार सकता है. एंड मेड हिम स्मीयर द ब्लड ऑन हिज फेस. और उसको ना सिर्फ उसको मारा उसका ब्लड निकाला बल्कि उसको कहा कि अपने फेस पे भी लगाओ. नो वन हैड एक्चुअली सीन इट. किसी ने भी ये इंसिडेंट देखा नहीं था. बट ईयर आफ्टर ईयर द स्टोरी persisted होता है continued या followed among the boys. लेकिन स्कूल के बच्चों में क्या होता है ये स्टोरी फैलती गई. स्वामी's head was dizzy with confusion in regard to Samuel's character. बेटा डिजी कह सकते उसको उसका सिर चकराने लग गया हैवी हो गया कन्फ्यूजन से कि सैमुअल के करेक्टर को लेके. वेदर ही वॉज गुड और बैड क्या वो अच्छा टीचर था या बुरा था. वेदर ही डिजर्व द एलिगेशन होते हैं चार्जेस. जो भी उन्होंने चार्जेस लगाए हैं स्वामी ने सैमुअल के लिए क्या वो चार्जेस सही भी हैं. स्वामी फेल्ट एन इम्पल्स टू रन होम. उसका एकदम से अर्ज. इम्पल्स का मीनिंग होता है बेटा अर्ज या डिज़ायर. उसका बहुत मन कर रहा था कि वो स्कूल में जाके घर वापस भाग जाए. एंड बेग हिज फादर टू टेक बैक द लेटर. और अपने फादर से क्या करे वो रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ अपना लेटर वापस ले लो. बट फादर वॉज एन ऑब्स्टिनेट मैन. ऑब्स्टिनेट का मीनिंग मैंने आपको बताया था बेटा स्टबर्न होता है जिसका डज इट मीन ज़िद्दी. लेकिन स्वामी जानता था कि वो क्या है बहुत ही ज़िद्दी किस्म के इंसान है. As he approached the yellow building, he realized that he was perjuring himself and was ruining his teacher's career, you can say. कहते जैसे जैसे वो येलो बिल्डिंग या दैट येलो बिल्डिंग रेफर्स टू द स्कूल्स बिल्डिंग. देन ही रियलाइज कि वो ना सिर्फ अपने आप को उस टीचर को ख़राब कर रहा है बल्कि अपने आप को भी धोखा दे रहा है. बिकॉज ही वॉज नॉट टेलिंग truth and his conscience was pricking him, bothering him. And moreover he was ruining his teacher's career also. Probably the headmaster would dismiss Samuel and then the police would chain him. कहते probably शायद हेडमास्टर उनको डिसमिस ही कर दें जॉब से और पुलिस को हैंड ओवर कर दें और जेल में डाल दें. फॉर ऑल दिस डिस्ग्रेस शर्म ह्यूमिलेशन ये भी कहते हैं कि किसी की बेइज्जती के लिए. एंड सफरिंग हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल. कहते कौन रिस्पॉन्सिबल होगा. ऑफकोर्स स्वामी ही रिस्पॉन्सिबल होगा. स्वामी शडर्ड. वो एकदम से क्या हो गया कांप गया. द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर ही ग्रिव्ड फॉर हिम. जितना वो सैमुअल के बारे में सोच रहा था उससे ग्रिव्ड होता है बुरा लगना
feeling bad for anyone. उसे बहुत ही दुख हो रहा था सैम्यूल के लिए. The dark face, now he is recalling Samuel's picture. उनका dark face, his small red sticked eyes, उनकी छोटी छोटी red color की eyes, as you can see in the picture also. His thin line of mustache, उनकी पतली सी बिल्कुल बहुत पतली लाइन मूँछों की. His unshaven cheek and chin, उनके बिना शेव किए हुए चीक और चिन. His yellow coat, और वो कौन से कलर का कोट पहना होता था? येलो कलर का. Everything filled स्वामी with sorrow. हर चीज़ उनको सैम्यूल की याद करके स्वामी को बहुत बुरा लग रहा था, उसको दुखी हो रहा था वो. As he felt the bulge of the letter, कहते जो बल्ज होता है बेटा, हैवी बिग साइज यू कैन से. was the letter the big size letter was heavy? No. But the contents of the letter were very heavy. That's why he was talking about the heaviness of the letter in his pocket. Okay, he felt like an executioner. Executioner होता है hangman, जो जल्लाद जिसको कहते हैं, जिसको जो कि फांसी देता है लोगों को. तो अपने आप को वो क्या लग रहा था कि मैं एक क्या हूँ, जल्लाद हूँ, और मैं किसको सजा दे रहा हूँ? सैम्यूल को, जो कि निर्दोष है. For a moment he was angry with his father and wondered why he should not fling into the gutter the letter of a man so unreasonable and stubborn. कहते एक बार तो उसका मन किया, उसे अपने फादर पे बड़ा गुस्सा आया और सोचने लगा कि क्यों ना मैं इस लेटर को गटर में डाल दूं. उस इंसान का लेटर जो कि बहुत ही क्या अनरीजनेबल, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं और बहुत ही क्या है, ज़िद्दी हैं. But the father had not done anything like that. He had taken the action on Swami's, you can say verdict. Verdict होता है जो उसने बात करी. स्वामी के बात करने के बाद ही के फादर ने एक्शन लिया. So we cannot say he was an unreasonable man. No doubt he was stubborn. But the father was stubborn. He wanted Swami to be in discipline. That's why he compelled Swami to go to school. I hope you are clear with the above chapter, whatever we have done till now. Please go to the further reading of the chapter and try possible exercise, beta. We'll be covering the next chapter, the further chapter, in the next class. Take care of yourself. Goodbye.